स्टडी विद सुधीर में आपका स्वागत है और आज हम कर रहे हैं आईसीएसई क्लास 9 के विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश लिटरेचर की ट्रेजर चेस्ट किताब की पहली कविता ए वर्क ऑफ आर्टिफिस। ओके, दिस इज बेसिकली ऑन अ बॉन्साई ट्री। बॉन्साई ट्री मुझे मालूम नहीं है आप में से कितने लोगों ने देखा होगा या नहीं। मैं आपको उसकी थोड़ी तस्वीरें दिखा देता हूं ताकि आपको पता तो चले। ये कविता लिखी है मार्च पियर्सी ने। ओके, and this is how a bonsai tree essentially looks like. Okay, इसको एक गमला नहीं कह सकते, छोटे से एक बाउल में उगाया जाता है। ओके, उसके अंदर सॉइल रहती है और इसको प्रून किया जाता है, काटा जाता है ताकि इसकी हाइट ज्यादा ना बढ़े। तो काफी सुंदर लगता है, लेकिन इसकी हाइट को एक तरह से कंट्रोल किया जाता है माली के द्वारा। ओके, सो दैट इज एसेंशियली सो बॉन्साई ट्री। बॉन्साई एक तरह का आर्ट एंड क्राफ्ट है इन द वर्ल्ड ऑफ नेचर और ये बेसिकली इट्स अ जापानीज टेक्निक। सो यू कैन सी मेनी मोर। अब इस तस्वीर में देखिए कि किस तरह से उसको प्रून किया गया है। नॉर्मली हम अगर बाहर के वातावरण में देखें तो शायद इस तरह के ब्रांचेस ना देख पाए कि जहां पर बीच बीच में स्पेस हो, लेकिन इस तरह से इसको प्रून किया गया है और इसके काफी कंपटीशन भी कराए जाते हैं कि किसका बॉन्साई ट्री का एंट्री ज्यादा बेहतर है, किसको फर्स्ट प्राइज मिलना चाहिए, किसको सेकेंड प्राइज मिलना चाहिए। और यहाँ पे इस तस्वीर में आप देखेंगे कि ये आप हाथ देख रहे हैं और किस तरह से कैंची के द्वारा पत्तों को काटा जाता है ताकि पत्ते सुंदर रहें। और उनको एक तकनीक मालूम होती है कि जिससे किस तरह से काटने से किस तरह से उसकी ग्रोथ होगी। सो इट्स ए टेक्निक। द बॉन्साई ट्री ग्रोइंग इज रियली ए टेक्निक विच इज नाउ प्रैक्टिस्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। भारत में भी काफी लोग बॉन्साई ट्री के एक्सपर्ट्स माने जाते हैं। तो ये जो कविता है A work of artifice is essentially about a bonsai tree. लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है कि ये सिर्फ बॉन्साई ट्री के बारे में नहीं है और इसके बारे में मैं इस पूरे वीडियो एक्सप्लेनेशन में आपको बताऊंगा। ये वीडियो एक्सप्लेनेशन की गई है हिंदी में। On the app we are explaining everything in English. Okay, so for students who are more comfortable understanding in English, they could look at that, in which we are doing the entire treasure chest poems and stories, 5 poems and 5 stories for class 9, all the notes, all the possible MCQs, question and answers, everything will be provided apart from doubt solving and mentorship. Everything will be provided on the treasure chest course, so you could go and have a look at it. The link is in the description box. Before I start with the poem, I also want to talk about something else. Many of you have been asking, which workbook to use. Okay, normally I do not recommend workbooks. Normally I don't do that. We do talk about question banks and test papers, and I had picked up, because the books are new, I had picked up 2-3 workbooks from the market. And I would say, and this is not a paid promotion, this is not a promotional video, so let me make that very clear right at the outset. This one, which has been published by Almond Books, this one I found to be really good, very comprehensive, both covering both poems and short stories of class 9 treasure chest textbook. It contains the paraphrase, okay, literary devices हैं, word meanings हैं, summaries हैं, themes के बारे में बात की गई है, character sketches हैं stories में, और word meanings भी काफी सारे, जो भी मुश्किल word meanings है उसका भी mention किया गया है। And there are also exercises in terms of sample papers, extract based and multiple choice questions. So आप इस वर्कबुक को देख सकते हैं। दिस इज समथिंग विच आई वुड रिकमेंड। आई फाउंड दिस टू बी गुड क्वालिटी। आई रिपीट, दिस इज नॉट अ प्रमोशनल वीडियो, बट what you can do is, and Almond Books has been kind enough to do that, they have said that if anyone uses the Study with Sudhir coupon code in their, while they are making the purchase from Almond Books website, in that case they will get a 10% off only for Study with Sudhir students. Okay, so you could do that. Ensure that you use the Study with Sudhir coupon code while you are making the purchase. Okay, that is something which you could look at. Okay, ये किस्सा खत्म हुआ। अभी हम यहां पर पोएम के बारे में पढ़ते हैं। Okay, so let's get started and I will tell you each of the word meanings और एक एक लाइन का मतलब क्या है। The bonsai tree in the attractive pot could have grown 80 feet tall on the side of a mountain till split by lightning. पहले 4 सेंटेंसेस को आप देखें तो ये बता रहा है कि बॉन्साई ट्री 80 फीट तक की ग्रोथ हो सकती थी। द बॉन्साई ट्री कुड हैव ग्रोन 80 फीट टॉल, 80 फीट तक बड़ा हो सकता था, राइट, ऑन द साइड ऑफ ए माउंटेन। अगर उसको एक पहाड़ पे, एक
ऊंचाई पर एक बाहर के वातावरण में उसको उगाया जाता, राइट। बट अभी वो कहां पर है? अभी वो है एक अट्रैक्टिव लुकिंग पॉट में। ओके, दिस एंड आई विल कीप अंडरलाइनिंग जो भी कीवर्ड्स हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। दिस इज एन इंपॉर्टेंट की फ्रेज, अट्रैक्टिव पॉट, दैट इट इज ग्रोइंग इन एन अट्रैक्टिव पॉट। लेकिन अगर वो माउंटेन साइड में उसको उगाया जाता तो शायद उसकी हाइट 80 फीट हो सकती थी। लेकिन माउंटेन पे उगने का एक नुकसान है, एक नेगेटिव साइड है, एक फ्लिप साइड है। उसका फ्लिप साइड ये है कि अगर बाहर तूफान आए, बिजली आए, तो एक तरह से कभी आपने देखा है जब बिजली कड़कती है तो कभी पेड़ पे आके लगती है तो पेड़ पूरी तरह से जल जाता है। इट गेट्स बर्न डाउन एज ए रिजल्ट ऑफ लाइटनिंग। आई डोंट नो इफ यू हैव सीन एनी ऑफ दोस काइंड ऑफ वीडियोस व्हिच कम, कहीं से भी आता रहता है। तो अगर बाहर के वातावरण में इस पेड़ को उगाया जाता तो हो सकता था कि उसके पेड़ की जान को खतरा था, राइट, कि उसको एक तरह से इट कुड हैव बीन स्प्लिट बाय लाइटनिंग। स्प्लिट बाय लाइटनिंग इज अगेन एन इंपॉर्टेंट की फ्रेज। ओके, आई विल कीप मार्किंग द की फ्रेज। तो अभी इसमें हुआ क्या है? अभी उसमें हुआ क्या है? ये तो आपका जो नोट, जो आपकी किताब में, आपकी इस किताब में जो पहले एक जो फर्स्ट पेज पे जो नोट है उसको आप हमेशा पढ़ लीजिए, बिकॉज इट गिव्स यू अ कॉन्टेक्स्ट टू द what the poem or the story is, right? So it will give you about, you know, what are the different poems and stories etc that she has written, what kind of an author is she. She's born in Michigan in the USA, और इस पोएम में किस थीम पर लिखा गया है, तो ये पहले पेज का जो है मटेरियल, उस मटेरियल को आप जरूर पढ़ लीजिए। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं उम्मीद करता हूं आप वो पढ़ लेंगे। ओके, तो उसका मतलब क्या है वो मैं इस वीडियो में आपको बता ही दूंगा। ओके, तो लेट्स गेट ऑन विद द एक्सप्लेनेशन पॉइंट्स। एक मिनट, या ओके। तो पहले 4 लाइनों को देख के तो हमको लगता है कि ये काफी सुंदर, एक तरह से विलियम वर्ड्सवर्थ जैसे एक नेचर के बारे में कविता है। 5वें पॉइंट पे, टिल स्प्लिट बाय लाइटनिंग गिव्स यू अ सेंस ऑफ, यू नो, सडन शॉक। सडन एक तरह से झटका लगता है कि अरे लाइटनिंग की बात हो रही है, एक तरह से डिस्ट्रक्शन की बात हो रही है। इसका मतलब यह है कि ये कविता एक तरह से नेचर पोएम नहीं है, एक सुंदर पेड़ की, बॉन्साई ट्री के गार्डनिंग टेक्निक के बारे में कविता नहीं है। बट ए गार्डनर केयरफुली प्रून्ड इट। और अब द पोएट इज टॉकिंग अबाउट हाउ ए गार्डनर उसको, उस बॉन्साई ट्री को धीरे धीरे प्रून करता है। काटने की बात मतलब पूरी तरह से खत्म करने की बात नहीं हो रही है, प्रून करता है। जहां तक माली का सवाल है, गार्डनर का सवाल है, उसका उद्देश्य, उसका एम क्या है, उसका इंटेंशन ये है कि मैं इसको जितना सुंदर बनाऊं, जैसे मैंने आपको तस्वीरों में दिखाया, जितना सुंदर बनाओ उतना उसको अच्छे प्राइस मिलेंगे, लोग उसकी तारीफ करेंगे, तो बॉन्साई ट्री ज्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन उससे होता क्या है कि जो पेड़ 80 फीट की हाइट तक उग सकता था, उसकी हाइट को अभी सीमित करके सिर्फ 9 इंचेस की हाइट तक सीमित कर दिया गया है। तो गमले में, गमला अट्रैक्टिव है, आप समझ रहे हैं बात, गमला, बिकॉज इसमें 2 लेवल्स पे बात की गई है, तो मैं पहले लेवल की बात कर रहा हूं। पहली बात हो रही है बॉन्साई ट्री की। बॉन्साई ट्री, उसका इट कुड हैव ग्रोन टू 80 फीट टॉल, लेकिन उसकी हाइट लिमिट कर दी गई है कितनी तक? 9 इंचेस तक। पहली बात। दूसरी बात, वो पहाड़ पे उग सकता था, पूरे ऊंचे आसमान, आई मीन ओपन स्काई के नीचे इट कुड हैव ग्रोन, राइट, लेकिन उसको एक अट्रैक्टिव पॉट में घर के अंदर उगाया गया। सो ये 2 बातें हैं बेचारे कॉन्ट्रास्ट इन इटसेल्फ। ओके, लेट्स मूव ऑन। एवरी डे एज ही विटल्स बैक द ब्रांचेस द गार्डनर क्रून्स। तो हर दिन जब वो ब्रांचेस को एक तरह से काटता है तो वो, क्रून्स का मतलब गाना गाता है, गुनगुनाता है। क्रून्स का एक्चुअली गुनगुनाता है। जब वो काम करता रहता है गुनगुनाता है। हम गुनगुनाने अब कब गुनगुनाते हैं? अब तब गुनगुनाते हैं तब आपको एक तरह से आपका मन शांत हो, आपको किसी बात की खुशी हो रही हो, या आप ऐसा काम कर रहे हो जिसको करने में आपको काफी मजा आ रहा हो, आपको काफी आनंद आ रहा हो, राइट। तो उस समय पर आप गुनगुनाते हैं, गाना गाते हैं, एक तरह से आपका मन एक तरह से शांत है, खुश है, उस समय पर आप गाना गाते हैं। तो वो माली उस समय पर गाना भी गाता है जब वह हर दिन, एवरी डे, हर रोज, एवरी डे इज इंपॉर्टेंट, विटल्स बैक द ब्रांचेस, यानी कि उसकी जितनी भी टहनियां हैं उसको एक तरह से काटता है, प्रून करता है, छोटा करता है, एक तरह से शेप में लाता है। इट इज योर नेचर टू बी स्मॉल एंड कोजी। और वो उस बॉन्साई ट्री से बात भी करता है, उसको ये बताता है कि ये तुम्हारा नेचर है
कि तुम्हारे जो नेचर है कि तुम छोटे ही रहोगे, ओके, और डोमेस्टिक घर के अंदर ही रहोगे और कमजोर रहोगे। कमजोर क्यों? क्योंकि उसको किस तरह के मिट्टी मिलेगी वो किस पर निर्भर करता है? माली पर निर्भर करता है। ओके, उसकी ग्रोथ किस तरह से होगी वो किस पर निर्भर करता है? माली और उसकी कैंची पर निर्भर करता है। पानी कैसे मिलेगा वो माली पर निर्भर करता है, क्योंकि बाहर होगा तो बारिश होगी, नेचर विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ, राइट? ऑल द काइंड ऑफ ट्रीज व्हिच ग्रो इन द आउटसाइड, इन द ओपन, इन द वाइल्ड। लेकिन यहां पर इट इज डिपेंडेंट ऑन द गार्डनर। तो गार्डनर उसको एक तरह से ब्रेन वॉश कर रहा है, उसके दिमाग में ये डाल रहा है कि तुम्हारा ये नेचर है कि तुम छोटे हो। कोजी मतलब समथिंग विच इज क्यूट, डोमेस्टिकेटेड एंड कमजोर। ओके, सो दैट इज व्हाट। और मैं तुमको इन सभी बाहर के जो चीजों से मैं तुमको प्रोटेक्ट करके रखता हूं। इसके आगे चलते हैं। हाउ लकी लिटिल ट्री, और उसको बताता है कि तुम कितने लकी हो क्योंकि तुमको यहां पर सुरक्षित रखा गया है। यू आर ए लिटिल ट्री बट यू आर ऑल्सो लकी। ये एलिट्रेशन नोटिस कर रहे हैं, एल एल का इस्तेमाल किया गया है। हाउ लकी लिटिल ट्री। सो एक तरह से एम्फसाइज किया गया है कि तुम छोटे हो लेकिन तुम काफी भाग्यशाली भी हो क्योंकि तुम्हारा मैं देखभाल कर रहा हूं यहां पर घर के अंदर। टू हैव ए पॉट टू ग्रो इन, कि तुम्हारे पास एक गमला है जिसके अंदर तुम उग सकते हो। ओके, विद लिविंग क्रीचर्स वन मस्ट बिगिन वेरी अर्ली टू ड्रॉ देयर ग्रोथ। जब हम एक लिविंग क्रीचर की, ओके, जो कि सांस लेता है, जैसे कि एक पौधा, उसकी बात करते हैं, या कि एक या तो एक पेड़, तो उसमें हमें जल्दी शुरुआत करनी चाहिए, लाइक, ताकि हम उसकी जो बढ़त है उसको एक तरह से काबू में कर सके। अब बात समझ रहे हैं? जब मैं दूसरी बात करूंगा तो आपको समझ में आएगा कि ये सारी बातें दूसरे लेवल पर भी इस्तेमाल की जा सकती हैं। तो अगर हम जल्दी शुरुआत करेंगे, जैसे बोलते हैं ना स्पोर्ट्स पर्संस को कि यू शुड ऑलवेज स्टार्ट अर्ली, बिकॉज व्हेन यू स्टार्ट अर्ली तब हम उनकी टेक्निक को वो किस तरह से, फॉर इंस्टेंस बैडमिंटन या क्रिकेट या हॉकी, ओके, या टेनिस, जो भी खेल रहे हैं, या स्विमिंग, जब भी कोई भी खेल जब हम करते हैं, अगर हम जल्दी शुरुआत करेंगे 8-9 साल की उम्र में, तो एक तरह से जो फॉर्मेटिव ईयर्स में किस तरह से वो रैकेट को पकड़ते हैं, किस तरह से वो बल्ला पकड़ते हैं, किस तरह से बॉलिंग करते हैं, उसको एक तरह से मोल्ड ज्यादा अच्छी तरह से, ज्यादा आसानी से किया जा सकता है। तो यहां पर भी बोल रहा है, लेकिन यहां पर जो मेन वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, जो कि एक खतरनाक वर्ड है, वो है ड्वार्फ देयर ग्रोथ। बॉन्साई ट्री के कॉन्टेक्स्ट में ड्वार्फ का मतलब समझ में आता है क्योंकि बॉन्साई ट्री एक तरह से छोटे कद का है, तो उसकी जो ऊंचाई है उसको पहले से ही, छोटे से ही, वन मस्ट बिगिन वेरी अर्ली टू ड्वार्फ देयर ग्रोथ, ताकि उसकी जो उसका जो हौसला है उसको पहले से ही कम कर दो। पेड़ को उगने मत दो, बिकॉज अगर वो पेड़ ज्यादा बड़ा हो गया, उसको काटा नहीं गया, तो होगा क्या? गमला उसके लिए कम पड़ेगा, वो गमले को आउटग्रो कर देगा। लेकिन माली ये नहीं चाहता। माली यही चाहता है कि उसका जो एक तरह से जो पोटेंशियल रहे वो गमले तक ही सीमित रहे। गमला क्या है? वो उसका घर है, राइट? उस घर के अंदर ही सीमित रहे, डोमेस्टिकेटेड रहे, बाहर की दुनिया को एक्सप्लोर ना करे। आपको अभी तक मैं उम्मीद करता हूं पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। द बाउंड फीड द क्रिपल्ड ब्रेन द हेयर इन कर्लस। नाउ अब मैं क्या करता हूं, इस पूरे कविता को अभी तक जो हमने पढ़ा है उसको दूसरे लेवल पे पढ़ता हूं। ओके, तो पहला तो हो गया, तो हमें लगा कि बॉन्साई ट्री की बात कर रहा है, लेकिन उसके बाद दिस एंटायर थिंग इज ऑल्सो ऑपरेटिंग एट द लेवल ऑफ ए मैन एंड अ वुमन, क्योंकि एक फीमेल पोएट है। शी इज बेसिकली मेकिंग द पॉइंट दैट द वुमेन आर कॉन्स्टेंटली बीइंग सब्जुगेटेड बाय मेन, कि उस तरह से दबाव डाला जाता है, वुमेन को बोला जाता है कि तुम्हारा स्थान घर के अंदर है, राइट? तुमको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाहर जाओगे तो तुमको खतरा हो सकता है। तुम बाहर की दुनिया में जाओगे, जैसे पेड़ की बात की गई है, हाँ, ये हो सकता है कि तुम बाहर की दुनिया में जाओ, हालांकि माली ये नहीं कहता है, आदमी ये नहीं कहता है। बाहर की दुनिया में जाएगी तो औरत का कद ऊपर और ऊंचा हो सकता है, ज्यादा बड़े काम कर सकती है, ज्यादा नाम कमा सकती है, लेकिन जो आदमी है उसको कहता है कि तुम घर के अंदर रहो ताकि तुम सुरक्षित रहोगी। तो एक तरह से एक तरफ है सुरक्षा, सेफ्टी, दूसरी तरफ है फ्रीडम, आजादी। तो किसका पलड़ा भारी होगा? सो दैट इज द क्वेश्चन दैट द पोएट इज रेजिंग इन दिस पर्टिकुलर पोएम। तो बॉन्साई ट्री का इस्तेमाल करके शी इज मेकिंग द लार्जर पॉइंट अबाउट द पोजीशन ऑफ वुमेन इन सोसाइटी। अंडरस्टूड? सो
उसको कहा जाता है कि तुम स्मॉल और कोजी, क्यूट, डोमेस्टिकेटेड और कमजोर हो। ओके, दिस इज योर नेचर, और इनको पहले से ही दबा के रखो तो बेहतर रहेगा। एंड उनको कहा जाता है कि हाउ लकी लिटिल ट्री, तुम कितनी भाग्यशाली हो कि तुम्हारे पास एक घर है उगने के लिए, रहने के लिए। ओके, और उनको पहले से ही उनका स्थान, उनके कद को बढ़ने नहीं देना चाहिए। और यहां पर बात हो रही है द बाउंड फीट, द क्रिपल्ड ब्रेन, द हेयर इन कर्लर्स, द हैंड्स यू लव टू टच। इसका मतलब क्या है? ओके, इसका मतलब क्या है कि एक मिनट, हाँ, इसका एक बेसिकली हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है। इन द प्री 20th सेंचुरी, ओके, 18-19वीं सदी की बात हो रही है, तब चीन में यह प्रैक्टिस थी, प्रथा थी कि फीट को बांधा जाता था ताकि फीट के ग्रोथ को कंट्रोल किया जाए। ओके, बिकॉज स्मॉल, टाइनी एंड डेलिकेट फीट वाज कंसिडर्ड टू बी ब्यूटीफुल, उसको सुंदर माना जाता था लड़कियों में। ओके, सो इन एनी केस, सो देयर फीट वर टाइड, ओके, एंड देयर वाज आल्सो दिस, दैट इज एज फार एज द क्रिपल्ड बाउंड फीट। द क्रिपल्ड ब्रेन का मतलब क्या है, सॉरी, द हेयर कर्लर्स का मतलब क्या है? दूसरी प्रथा थी कि यूएसए में कि जो स्ट्रेट हेयर थे उसको और सुंदर बनाने के लिए उनका कर्लर्स का इस्तेमाल किया जाता था इन ऑर्डर टू मेक द वुमेन लुक मोर अट्रैक्टिव। ओके, सो basically both these things which are doing, bound feet and hair in colors. Crippled brain is that because that's how their brain has been kind of made to think that अगर तुम्हारे bound feet होंगे या hair in colors होंगे तो आप ज्यादा सुंदर लगेंगे। So they have been brainwashed in that sense. So बाउंड फीट एंड हेयर इन कर्लर्स, तो इस तरह की प्रथा विमेन पे इंपोज की जाती थी चीन में, अमेरिका में, इन ऑर्डर टू मेक देम लुक मोर ब्यूटीफुल। सो बोथ, आई मीन दिस इज सर्टेनली ए मेथड ऑफ ऑपरेशन, लेकिन उसको किस तरह से बेचा जाता था, किस तरह से द आइडिया वाज सोल्ड टू देम, दे वर टोल्ड दैट ये करोगे तो तुम ज्यादा सुंदर लगोगे। सो इट वाज टोल्ड इन अ सेंस दैट ये तुम्हारे भले के लिए हो रहा है, बट इट वाज ए मेथड ऑफ oppression in many senses, right? So that is what they are doing. ये तो हो गई, ये तो the hands you love to touch. Now gardeners जो कि bonsai tree को एक तरह से fashion करते हैं, वो obviously पत्तों को, टहनियों को touch करते हैं, feel करते हैं. So they love to touch what does. Similarly, men may like to touch the hands of the women, right? So there is that feeling of what do you say? A fondness of emotion, right, which they do, but it is the same hands which also are oppressing. While the hands you love to touch, but you are also in a way oppressing the same hands of the bonsai tree or of the women, and thereby stunting their growth. उनकी growth को कम करने की कोशिश आप कर रहे हैं. So that is what exactly it is being spoken about. Now गार्डनर का जेंडर इस पूरे इसमें ही के इसमें इस्तेमाल किया गया है, राइट? सो ऑब्वियसली दैट्स हाउ द टू लेवल्स आर बीइंग स्पोकन अबाउट, वन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ गार्डनर एंड अ बॉन्साई ट्री, वन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ मैन एंड अ वुमन. नाउ बाउंड फीट, क्रिपल्ड ब्रेन, ये सब मेटाफर्स हैं. दे कन्वे द अननेचुरलनेस ऑफ द एक्शन टू इलस्ट्रेट द नेगेटिव इफेक्ट ऑन द पर्सन, राइट? ये दोनों मेटाफर्स हैं. देन ऑब्वियसली द आयरनी, the hands you love to touch, it's a very ironic, the hands you love to touch, the action that is being described कि जिससे कि एक तरह से प्यार का इजहार किया जा रहा है, that is actually a little bit of a cruel kind of an action, right? So that is the poetic device of irony that is being used. Last part, title of the poem. टाइटल में एक वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, आर्टिफिस. आर्टिफिस का मतलब है छल कपट, यानी कि किसी को चीट करना, राइट? इट इज इंग्लिश में यू कैन यूज वन मोर सिनोनिम लाइक ट्रिकरी, राइट? सो इट इज लाइक डेलिब्रेट एंड क्लेवर डिसेप्शन, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड आर्टिफिस. सो बॉन्साई ट्री के बारे में अगर आप वर्क ऑफ आर्टिफिस बोलें तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है, बिकॉज यू थिंक दैट द गार्डनर इज ट्राइंग टू मेक द ट्री लुक ब्यूटीफुल, बट जब उसको सुंदर बनाता है, लेकिन साथ साथ इट द अदर साइड विच कैन नॉट बी इग्नोर्ड इज द फैक्ट दैट उसकी आजादी को पूरी तरह से डोमिनेट करके एक तरह से एक सीमित जगह में उसको उगाया जा रहा है. सो दैट इज द ट्रिकरी दैट इज बीइंग डन. बॉन्साई ट्री को ये बताया जा रहा है कि देखो मैं तुमको कितना सुंदर रख रहा हूं, मैं तुमको कंपटीशन में ले जाऊंगा और तुमको फर्स्ट प्राइज या सेकंड प्राइज मिलेगा, राइट?
और मैं तुम्हारी देखभाल कर रहा हूं, तुम घर के अंदर सुरक्षित हो। लेकिन जो बात उसको नहीं बताई जा रही है वो ये है कि तुम अगर बाहर जाते तो तुम इतने से नहीं रहते, इतने से बौने से नहीं रहते, तुम्हारी हाइट इतनी हो सकती थी। ये बॉन्साई ट्री को कभी पता ही नहीं चलेगा, लेकिन क्योंकि उसकी दुनिया घर के अंदर सीमित है। उसका घर क्या है? उसका गमला। उस गमले के अंदर ही उसकी दुनिया है, उसमें वह सीमित रहता है और उसकी वजह से उसको बाहर की दुनिया के बारे में और उसका पोटेंशियल क्या है उसके बारे में उसको कभी भी जानकारी नहीं होती, उसके बारे में उसको कभी भी किसी तरह भी ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। क्या हिंदी बोल रहा हूं मैं। ओके, सो दैट्स एज फार एज ए वर्क ऑफ आर्टिफिस इज कंसर्न। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह कविता समझ में आ गई होगी। ओके, एंड इफ यू अंडरस्टैंड द बेसिक पॉइंट्स, you should be able to write your answers, express your answers, reference to context, as well as the MCQs. Thank you very much for watching. Tata, bye bye.